So economics means what? Economics is the study of the use of scarce resources that have alternative uses. In other simple word, we can say to economics. Economics deals with how human beings satisfy unlimited wants with limited means. It means what? Resources. Okay. Resources means which are resources are there? Air, sunlight, then land, water. We can say here minerals. Okay. These are what? All are resources. From these resources, how human being complete complete his wants. Okay. That given into the economics. Okay. Now we will see here economics has there two branches, that is microeconomics and macroeconomics. So microeconomics means what and macroeconomics means what? We will see here very glance. Then see, here given do you know, you should know. These all things you read by own at home. Maybe you everybody has textbook. Okay? You all have no? Then okay. जो हम खास खास जो चीजें हैं अब यहाँ पे क्योंकि टाइम भी कम है वो हिसाब से हम क्या करेंगे ये लेसन से जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम लेंगे ओके बाकी चीजें जो यू शुड नो जहाँ खास है अब यहाँ पे हिस्टोरिकल व्यू दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का तो आप ये घर पे भी रीड कर सकते हो ओके सो इन शॉर्ट विल टेक हियर माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स व्हाट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स एग्जैक्टली व्हाट ओके तो आपने 11th स्टैंडर्ड में भी हुआ है तो देखो माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग ओके स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी देखो नेशनल इकोनॉमी के स्मॉल पार्ट के साथ ये क्या करता है डील करता है इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स such as an individual consumer, individual producer, or individual firm, or the price of the particular commodity, or factors. Okay, these are the individual part or units of the economics. ये इंडिविजुअल पार्ट्स की स्टडी इसमें इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती है देन हियर गिव वन डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स ओके सी definition of microeconomics given by two economists that is first one is there Maurice Dobb what he says Maurice Dobb says microeconomics is in fact a microscopic study of the economy only microscopic study of the economy that means microeconomics okay then second one Professor AP Lerner says microeconomics consists of looking at the economy through a microscope as it were to see how millions of cells in the body of economy the individuals or households as consumers and individuals or firms as producers play their part in the working of the whole economic organism getting from this definition you can also get the particular meaning of economics okay microeconomics okay then next here given scope of microeconomics okay scope यानी कि कौन से पार्ट को इंक्लूड किया है इकोनॉमिक्स में और किस तरह से इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स एक वास्ट सब्जेक्ट
होते जाता है ना। तो ये हमको देखना है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. So scope of microeconomics divided into three parts, that is in three theories. They are divided into three theories. First theory is the theory of product pricing, theory of factor pricing, then third one is the theory of economic welfare. Then in the theory of product pricing में बताया है कि किस तरह से प्रोडक्ट के प्राइस डिटर्मिनेट होते हैं. ओके. देन इन द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, जो भी प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स लगते हैं उनको किस तरह से उनकी प्राइस डिटर्मिनेट होती है. एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. थ्रू दिस थर्ड वन थ्योरी इकोनॉमिक वेलफेयर, इट मीन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल किस तरह से होता है. ओके. वेलनेस ऑफ द पीपल. ओके. इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि दिस थ्री theories divided into the microeconomics. Okay. So first we will see here exactly what is meant by theory of product pricing. Okay. So given here, the price of an individual commodity is determined by the market force of demand and supply. Okay. मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेट कैसे होती है? ड्यू टू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. मार्केट में देखा जाता है कोई चीज का प्रोडक्शन हो गया है, उसको डिमांड कितना है, उसका सप्लाई कितना है, वो हिसाब से वहां पे मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेट होती है. तो उसकी स्टडी कहाँ होती है? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ डिमांड एनालिसिस, that is what individual consumers behavior, and supply analysis, that is individual producers behavior. It means what? Microeconomics studies theory of product pricing with what? With individual consumers behavior and supply analysis with individual producers behavior. वहां देखा जाता है individual single consumer. Individual, it means what? Single consumer, how is behave and how behave इंडिविजुअल प्रोड्यूसर यानी सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर. ओके. तो उसका स्टडी यहाँ होता है. ओके. देन सेकंड वन इज देयर थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द production process. Okay. Without these factors, any production can't complete. Okay. So that's why अब इन लोगों की प्राइसेस किस तरह से डिटर्मिनेट होती है, कैसे होंगी? So in microeconomics, so here microeconomics helps in determining the factors from rewards for land, labor, capital and entrepreneur in the form of, for the land there is rent, for the labor wages is there, then for capital interest. Yes, we are borrowing capital from the bank. Okay. Then we pay their interest, and for the entrepreneur that he get reward as a profit. Okay. तो इस तरह से इस सबका डिटर्मिनेशन कैसे होता है उसकी स्टडी इकोनॉमिक्स में होती है. समझ में आ? देन नेक्स्ट इज देयर गिवन थर्ड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. प्रोडक्ट प्राइसिंग होता है, फैक्टर प्राइसिंग होता है, और ये सब के बाद एक वेलफेयर. इकोनॉमी में क्या होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर होना चाहिए. ओके. सो थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विथ एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एलोकेशन, अब रिसोर्सेज का एलोकेशन होना चाहिए इफिशिएंटली. जैसे कि अब हमारे पास लेबर है, ह्यूमन कैपिटल वी कैन से इन अदर वर्ड. ओके. अब उसको किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए, जो स्किलफुल है उनको ऐसे. ओके. जैसे कि फिर अब मिनरल्स है, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, उनका सबका प्रॉपर वे में यूटिलाइज होना, उनका एफिशिएंटली एलोकेशन होना. ओके. सो एफिशिएंसी इन द एलोकेशन of resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people. अगर efficiently ये सब रिसोर्स का अगर एलोकेशन होता है, उनकी सबकी चेन प्रॉपर अगर फिक्स होती है, तो वहां पे क्या होता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है. जैसे कि प्रोडक्शन प्रॉपर हो रहा है, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल प्रॉपर मिल रहा है,
उसके लिए प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स है, जैसे कि लेबर है, उसको प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है, उसको अच्छे से वेजेस मिल रहे, बहुत माइक्रो लेवल की ये सब चीजें होती। तो ये सब चीजों का अगर चेन अगर फिक्स प्रॉपर अगर बैठता है तो वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वहां पे मिलता है। और अगर ये फुल, अगर यहाँ पे फुल इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, क्या बोलते हैं, फुल अगर इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, दैट इज ए पार्शियल इक्विलिब्रियम। अगर इसमें कोई चीजों में, फैक्टर्स में अगर वहां पे कोलेबरेशन होता है, काम होता है, तो दैट इज ए पार्शियल, वो है आगे हमको कंसेप्ट। और फुल इक्विलिब्रियम, जैसे कि सबका इक्वल एक कंट्रीब्यूशन वहां पे होता है, तो जब क्या होता है, मैक्सिमम satisfaction gets to the people. Okay, so economic efficiency involves three efficiencies there. Further, first one is there efficiency in production, second one efficiency in consumption, then third one is efficiency, overall economic efficiency. Okay, efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources. Just I told you. देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि जो भी हमारे इकोनॉमी में अवेलेबल रिसोर्सेस है, हेलो, efficiency in production. Okay, so efficiency production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources. जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उसमें से क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम अमाउंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना है। फॉर whom? फॉर द पीपल। ओके, यस। देन सेकेंड वन इफिशियंसी इन कंजम्पशन। तो इफिशियंसी होना चाहिए, कंजम्पशन एफिशिएंसी, कंजम्पशन यानी खर्चा करने की एफिशिएंसी भी बढ़ना चाहिए। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society. अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या है, ये पूरा चेन है ना, तो ये अगर एफिशिएंटली वर्क करेगा तो ऑटोमेटिकली पीपल का कंजम्पशन एफिशिएंसी इट विल बी रेज। ओके, देन ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी इट मीन्स दैट it means the production of those goods which are most desired by the people. जो चीजें ज्यादातर जिसकी बोलते लोगों की डिजायर्ड मीन्स विश होती है कि नहीं, जिनको होना है उनको गेन करने की, अटेन करने की, तो वो ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी इस प्रॉपर वे में होना जरूरी है। उसका स्टडी कहाँ होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। ओके, then microeconomic theory shows some conditions, that is which are conditions there. Microeconomics theory shows under what conditions these efficiencies are achieved. Okay, so in what condition, see here. Thus the focus of microeconomics is mainly confined to price theory and resource allocation. Okay, बोले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मेनली प्राइस थ्योरी और रिसोर्स एलोकेशन में क्या करता है, वहां पे प्रॉपर वे में मैनेज करता है। इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट्स रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी, it means that is a part of macroeconomics. Okay, so this approach does not study national economic problems such as unemployment, poverty, inequality of income, okay, inequality of income etc. Okay, तो ये सब चीजें, ये सब मैटर माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं होते हैं, है ना। सो हियर थ्योरी क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इन शॉर्ट इवन हियर theory of growth, theory of business cycles, monetary and fiscal policies, etc. are beyond the limits of microeconomics. This is the study matter of what? Macroeconomics. In macroeconomics, studies theory of business cycles, monetary and fiscal policies. Okay, it is not studying in microeconomics. So here we have seen
the scope of microeconomics. Okay, so microeconomics has scope: theory of product pricing, theory of factor pricing, theory of economic welfare. The next point is there features of microeconomics. What are the features are there? So first one is there study of individual units. Okay, microeconomics studies only individual units. So here given microeconomics is a study of the behavior of small individual economic units such as individual firm, individual price, individual household, etc. एक फैमिली का इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स ये सब स्टडी करना, ये किसमें होता है? माइक्रो इकोनॉमिक में. ओके, देन प्राइस थियरी. We are looking here features of the microeconomics. Okay, second one is there price theory. Microeconomics deals with determination of the prices of goods and services as well as factors of production. Hence it is known as a price theory. क्यों प्राइस थ्योरी कहा जाता है? क्योंकि वहां पे क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के भी जो भी फैक्टर्स है उनके भी प्राइस डिटर्मिनेशन होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्राइस थ्योरी. ओके, देन थर्ड वन इज देयर पार्शियल इक्विलिब्रियम. ओके, पार्शियल इक्विलिब्रियम, सी हियर इक्विलिब्रियम, देन पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड फुल इक्विलिब्रियम. Equilibrium means what exactly? See here, equilibrium is balance between market demand and supply. As a result, price become a stable. इक्विलिब्रियम बोले तो क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई का जो फोर्स है वो एक बैलेंस में आ जाता है और वहां पे एक स्टेबल प्राइस वहां पे डिटर्मिनेट होती है. दैट इज इक्विलिब्रियम. ओके, यहाँ पे क्या दिया है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम. सो पार्शियल इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन in only two factors given here, not all factors or not all resources. Okay, given only two resources or we can say here only two factors. Okay, so here microeconomic analysis deals with partial equilibrium which analyze equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry, etc. getting क्या होता है यहाँ पे कि दो ही चीजों में यहाँ पे क्या होता है? दो चीजों का ही एक लेके स्टडी होती है. ओके, इंडिविजुअल कंज्यूमर है तो फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर से रिलेटेड जो 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 फैक्टर्स है, उसका इनकम, उसका कंजम्पशन, उसका एक्सपेंडिचर, उसकी सेविंग, ये सब चीजें वहां पे स्टडी होती है. बोले तो क्या होता है यहाँ पे? पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है, सिंगल, नॉट अ फुल्ली. फुल एक इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जैसे कि पूरे इकोनॉमिक के जो भी रिसोर्सेस है उनको एक साथ लेके उनका स्टडी करना, दैट इज अ फुल इक्विलिब्रियम. ओके, then fourth one is here based on certain assumptions. So microeconomics is based on some assumption, that is here given. Fundamental assumption is there, other things remaining constant. We can say in simple economical terminology, that is ceteris paribus. What? Ceteris paribus. अदर, इसका मीनिंग क्या है? ceteris paribus इट मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट और बीइंग स्टेबल. ओके, तो अब इसको क्या कहते हैं? अदर थिंग्स यानी अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये एक अजम्पशन है कि ऐसा अज्यूम किया है कि जो भी कोई स्टडी करते हैं, जैसे कि अभी कंज्यूमर की यहाँ पे स्टडी हो रही है, एक इंडस्ट्री की यहाँ पे स्टडी होती है, तो जब स्टडी होती है तो बाकी के जो उसके रिलेटेड पार्ट है, उसका इनकम है, उसकी सेविंग है, मार्केट की कंडीशन है, उसके हैबिट्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर related to consumers. These all things are remain constant. उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ना गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज है, सिचुएशन एकदम स्टेबल है. ऐसे सिचुएशन में ही यहाँ पे क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी पार्ट्स की स्टडी होती है उसमें क्या किया जाता है? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ऐसा अज्यूम किया जाता है. गेटिंग? और जब भी प्रॉपर वहां पे एक एनालिसिस होता है. ओके, then second here assumption given, laissez-faire. Laissez-faire policy also there. Laissez-faire policy it means liberal policy in. अब यहाँ पे क्या है? ये एक assumption रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि यहाँ पे क्या चाहिए? लिबरल पॉलिसी चाहिए, एनी विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन. क्या है? इधर गवर्नमेंट का किसी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, किसी प्रकार का गवर्नमेंट का रोल नहीं चाहिए.
इस तरह की एक पॉलिसी होती है, यानी कि गवर्नमेंट के जो भी टर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उसको यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है. ओके, इस तरह से लेजिस पेयर पॉलिसी. इट मीन्स प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. जैसे कि प्योर कैपिटलिज्म, अब जैसे कि प्योर कैपिटलिज्म कोई इकोनॉमी है क्या? नहीं होती है ना. तो इस तरह से प्योर कैपिटलिज्म में कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं होता है. तो इस तरह की इकोनॉमी पे भी एक इसका अज्यूम किया हुआ है. ओके, and these assumptions makes the analysis simple. ये अज्यूम करते हैं, ऐसी कंडीशन अज्यूम करने से क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करना सिंपल हो जाता है. ओके, देन फिफ्थ वन फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, दैट इज स्लाइसिंग मेथड. ओके, स्लाइसिंग मेथड इट मीन्स, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज विच मेथड? लंपिंग मेथड. लंपिंग यानी कि सब चीजों को एक जगह कलेक्ट करके उसकी स्टडी करना. और माइक्रो इकोनॉमिक्स इट मीन्स स्लाइसिंग, इट मीन्स इट स्लाइस टू ऑल parts of the economy or all factors of the economy, we can say here. Okay, so here slicing method used in microeconomics. Microeconomics uses slicing method. It splits or divides the whole economy into small individual units and then studies each unit separately in detail. Okay, for example, given study of individual income out of national income. See, नेशनल इनकम में से एक कोई भी पर्सन का, इंडिविजुअल का इनकम स्टडी करना, दैट इज स्लाइसिंग मेथड. स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एटसेट्रा, है कि नहीं. इंडिविजुअल की स्टडी, मतलब टोटल हमारे नेशनल की डिमांड कितनी है, उसमें से एक इंडिविजुअल की डिमांड कितनी हो सकती है, इसका स्टडी करना, दैट इज स्लाइसिंग मेथड. देन सिक्स्थ वन फीचर इज देयर, यूज ऑफ marginalism principle. Maybe you have studied lesson number 2 utility, in that given marginal utility. Okay, so here also given marginal, it means what? So marginal it means change brought in total by additional one unit, additional by extra unit. Okay, we can say here that is the term marginal means change brought in total. बोलो ऑलरेडी जो टोटल है उसमें क्या होता है, जब एडिशनल एक यूनिट उसमें हो जाता है तो उससे क्या होती है, जो मिलती है यूटिलिटी बोलो या वो जो हो जाता है, क्या होता है, एडिशनल, एट मीन्स मार्जिनल. ओके, हियर तो यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज ऑल्सो फीचर. So here marginal analysis helps to study a variable through the changes. Okay, producers and consumers take economic decision using this principle. See, getting you all students? Voice is clear there, students? Okay, getting now you all what I'm going to tell you? Okay, then analysis of market structure. Analysis of market structure. See here. Microeconomics analyzes different market structures such as perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly, etc. Features. Microeconomics features we are going to see. And now here seventh feature is there, what? Analysis of market structure. यानी मार्केट के भी अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए हैं. It is given in the fifth lesson. These all structure given into the, देखो हमको जो भी सब लेसन आगे के पढ़ना है उसका एक छोटा सा बेस यहाँ पे फर्स्ट लेसन में दिया हुआ है. ओके, देन तो मार्केट के टाइप यहाँ बताए हुए हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली. ओके, ये हम आपको डिटेल में आगे होगा. देन नेक्स्ट फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, दैट इज लिमिटेड स्कोप. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या है बता रहे हैं यहाँ पे, लिमिटेड स्कोप. Why? The scope of microeconomics is limited to only individual units. Okay, it doesn't deal with the nationwide economic problems such as inflation, deflation, balance of payments, poverty, unemployment, population, economic growth, etc.
यानी कि क्या है, एक ये क्या करता है, इंडिविजुअल पार्ट की स्टडी करता है, इसके लिए यहाँ पे क्या बताया इसको, इट हैज लिमिटेड स्कोप, इट इज नॉट स्टडी नेशन वाइड प्रॉब्लम्स। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ पे। देन नेक्स्ट पॉइंट is there importance of microeconomics. What is important of the microeconomics there? So first is there price determination. Price determination करने के लिए इसका important है ना। तो अगर मार्केट में कोई इंडिविजुअल या मार्केट में प्राइस डिटरमिनेट करना है कोई प्रोडक्ट की, कोई कमोडिटी की, कोई गुड्स की, सर्विसेज की, तो उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का फायदा होता है, बेनिफिट मिलता है। ओके, सो हियर माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। Okay, it analyze or it explains how the price of different products and various factors of production are determined. Okay, then second one is there importance of microeconomics, free market economy.